Hello everyone. Today we are studying commodity and derivative market. First lecture. Commodity means the products commodity which man can touch, smell, feel and all. Derivative market is maximize the market follow for untouchable, intangible goods like your investments, bonds and etc. Today we can today we are study first commodity market. Okay, the commodity market is unknown to us the commodity that have always been a profit, a part of our day-to-day existing and also known as the fi- finance investment avenues that available. It means all over the part of the goods which use on your daily life. For example, our goods are जो हर एक चीज जो तुम्हें यूज होती है जिसका तुम यूज करते हो इन एक्सचेंज मोड पे एट अ वर्ड ऑफ मनी तुम उन्हें खरीदते हो दैट्स मीन द बीट किसके लिए खरीदा जाता है क्यों खरीदा जाता है फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड कॉटन इन अवर्स क्लॉथ किसके लिए खरीदा जाता है इधर बटेर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कमोडिटी इन लाइक कॉटन फॉर द मेकिंग ऑफ क्लॉथ एंड द वेयरिंग ऑफ क्लॉथ ओके देन ज्वेलरीज किससे बनता है गोल्ड या सिल्वर से देन नेक्स्ट वन इज फ्यूल दैट रन अवर द कार it means the commodity means a product that you can use for the daily life for running. In short, in your vertical balance sheet, the goods are direct or apply component are commodity in use as well the investment and liabilities are derivative okay जो कि तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर तुम्हारे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में तुम जहाँ पे उनके एक्सपेंडिचर मेंशन करते हो कहाँ एक्सपेंडिचर करते हो वर्टिकल बैलेंस शीट में वर्टिकल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जिन चीजों का एक्सपेंसेस उठाया जाता है तो ऑल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल में क्या क्या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कॉटन होगा यहाँ का ओके देन गोल्ड होगा फॉर ज्वेलरी तो रॉ मटेरियल फ्यूल होगा दे ऑल आर द कमोडिटी इसको टच करते हो उसके फील लेते हो उसको एक्सपेंस करते हो उसका इस्तेमाल होता है इट इज कमोडिटी देन द कमोडिटी हैव बीन द बेस ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में यूज हो रहा है एक्सपेंड किसे याद रखना है which one the commodities are the use in a trading account देखो एक सिंपल टेक्निक है अगर तुम्हें कोई बोले कि कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट आता है क्या तुम्हें कोई एक एग्जांपल दो तो सोचने की चीज नहीं है कमोडिटी सुने अब कमोडिटी में क्या होता है डेरिवेटिव के पार्ट्स भी तो वन टाइप ऑफ कमोडिटी है जिसे हम परचेस कर रहे हैं तो कमोडिटी और डेरिवेटिव अलग अलग क्यों किया हुआ है तो इसलिए कमोडिटीज इट मीन्स द टचेबल वो चीजें जिन्हें छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं परचेस करना और सेल करना द बाइंग एक्टिविटी ओके तो उस हिसाब से उसने पहले बोला ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो खरीदी जाती है इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल देन उसके ऊपर एक्सपेंडिंग होता है खर्चे होते हैं और द रेडी टू सेल एंड पनिशमेंट other than they have they have support they have support commerce commerce means business encourage the explanation alternate have the historic of nations today they play a very important role in the world economic with on the billions of dollars of this commodity trading they exchange across the world. Commodity market is an important constituent
of the financial market and the country. Commodity market is main part of the financial market because the maximum raw material production is high and the high production is making the high profitability. It is a market where the wide range of product because the previous material, the material, base material, crude oil, energy and soft commodity like plants, oil, coffee, etc. are traded in an important develop of vibrant activity and liquid commodity market. The types of commodity trading market in our market, in global market, कौन से टाइप के कमोडिटी कैसे सेल होता है. The first is commodity market. The commodity market को फिर दो हिस्सों में बांटा हुआ है. First is on one part is agriculture product and second is non-agriculture product. In short, agriculture product it means by agriculture खेती बाड़ी करके जो मिलते हैं. Non-agriculture product जो विदाउट खेती बाड़ी करके मिलते लेकिन द पार्ट फ्रॉम द नेचर. पार्ट फ्रॉम नेचर उसको बोला हुआ है. नेचर के दो पार्ट है, एक एग्रीकल्चर करके मिलता है और एक विदाउट एग्रीकल्चर करके प्रिजर्व किया हुआ है वो मिलता है. अब देखते हो कौन कौन से. द फर्स्ट इज द टू पार्ट ऑफ डिफरेंट कमोडिटी एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर. द फर्स्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी दिस इज इंक्लूडेड grains and oils, soybean, chana, soybean, chana, corns, and etc. Zira, turmeric, etc. Then non-agriculture commodity, जो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करके नहीं मिलते. इट मीन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर यानी जो खनिजों में जमीनों में है जे मातीमध्ये पुरलेलं आहे आणि जे आपण काढतो खाणीतून. समजलं का? यू अंडरस्टैंड? देन अब उनको बेस के हिसाब से कमोडिटी मार्केट में कैसे वैल्यूज है इसके ऊपर जरा डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. कमोडिटी मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हायर डिमांड पे है कॉफी. ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है ये चीज. देन फिर शुगर, फिर कोको फॉर चॉकलेट, माइस, सोयाबीन, जीरा, सनफ्लावर ऑयल, टर्मरिक, कॉटन एंड इसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें लाइक राइस एंड ऑल एक्सेट्रा. बहुत सी लिस्ट है. शॉर्ट एंड स्वीट मैंने लिख के दिया तुम्हें रिफर करने के लिए. देन बेस मटेरियल. बेस मटेरियल मीन्स ऐसे जो कंपल्सरी मटेरियल में यूज होता है. फॉर एग्जांपल कॉपर होना चाहिए. देन गोल्ड की ज्वेलरी बनेगी. लीड है. लीड एक ऐसा है जिसको एक मटेरियल है. लीड मटेरियल लाइक पत्थर की तरह होता है जो गैस के ऊपर जो होता है जिससे उनके वो चूल्हे बनते हैं. लेकिन कोई मेटल नहीं रहता, वो पत्थर की तरह होता है, टूट भी सकता है. द लीड्स. देन जिंक है, एल्युमिनियम है. देन प्रीसियस मटेरियल. प्रीसियस मटेरियल्स में क्या है? प्रीसियस में गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, प्लैडियम है. और एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस. द कमोडिटी मार्केट. देन currently there are the 24 commodity exchange in India. Commodity exchange in India कितने? 24 है. The following are the three main national level exchange. 24 commodity markets है अपने इधर. different number यानी in short 24 commodity markets यानी ऐसे कुछ markets रहते हैं जो वह agents rule करते हैं. एजेंट रोल. और जो एजेंट रोल रहते हैं उस एजेंट्स के अंडर वो लोग फिर वो कमोडिटी को एक्सचेंज करते फॉर बिहाफ ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमम गुड्स. फॉर एग्जांपल अभी जो तुमने देखे मिल्क की हड़ताल चालू थी मिल्क का रेट बढ़ाने के लिए. तो वो कमोडिटी एक्सचेंज के बीच में जो होल्डर रहते हैं मीन्स वो गवर्नमेंट होल्डर ही रहते हैं. वो फिर बोलते हैं कि 25 रुपए लीटर का 30 रुपए लीटर करेंगे, 2 दिन स्ट्राइक करते हैं. तो वो जो एक्सचेंजर होता है वो उनको चढ़ाता है. एक कमेटी होती है और वो कमोडिटी एक्सचेंज का हैंडल करते हैं. तो मैक्सिमम नंबर 1 एक्सचेंज इज MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई. इसके अंडर महाराष्ट्र स्टेट की मैक्सिमम कमोडिटी एक्सचेंज होती है इन लेवल ऑफ नेशनल इंटरनेशनल. उसके बाद NCDX
NCDEX में क्या है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज मुंबई। यहाँ दोनों टाइप की कमोडिटी एक्सचेंज होती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, बट दोनों कमोडिटीज भी एंड इन्वेस्टमेंट्स भी। NMCE, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद, सिमिलर टू मुंबई। अहमदाबाद ये गुजरात से होती है, यहाँ ये पोर्ट के सामने, वहां से एक्सचेंज किया जाता है, वहां से फिर वो बंदरगाह में लाया जाता है, मीन्स पोर्ट के सामने, डॉक के सामने, और डॉक से, डॉक यार्ड से वो चीजें बाहर भेजी जाती है। अभी कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा ज्यादा मैक्स कर रहा है, तो इन इंडिया एमसीएक्स सबसे ज्यादा काम कर रहा है, एमसी। उसके बाद देखा जाए तो एनसीडीएक्स, एमसीएक्स का है, मैंने अपने एम6 की बात किया था, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन मुंबई, यानी मुंबई इज अ नेशन ऑफ सिटी और कैपिटल ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो वन पार्ट ऑफ एमसी कि सबसे ज्यादा कमोडिटी एक्सचेंज होके इकोनॉमी जो जनरेट हो रही है वो क्यों हो रही है, यहाँ हो रही है, इसलिए उसको कैपिटल ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है नेशन का। उसके बाद मैक्सिमम एनसीडीएक्स से हो रहा है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ से जो एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सा है, तो दोनों पार्ट्स कमोडिटी एक्सचेंज हो रहे हैं, कमोडिटी भी एक्सचेंज हो रहा है, डेरिवेटिव भी एक्सचेंज हो रहा है, और दोनों के एक्सचेंज का मैटर ऐसा है, उसको रेटिंग थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद रिमेनिंग लाइक अहमदाबाद वाला और अदर रीजन वाले हैं, और मैक्सिमाइज 24 है। देन नेक्स्ट, द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स के बारे में थोड़ी डिटेल लो। तो एमसीएक्स क्या है, एमसीएक्स इज इंडियाज लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज। MCX is the popular for trading in metal, इसमें ट्रेडिंग करता है मेटल्स एंड एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट वो बनाता है MCX वाला, मेटल एंड एनर्जी। दिस एक्सचेंज वाज ओरिजिनली promoted by financial technology as software company in the capital market space। वो क्या कर रहा है, ओरिजिनली किसको प्रमोट करता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है, और सॉफ्टवेयर कंपनी in the capital market। capital market means equity market, share market, okay। इन कैपिटल मार्केट में, बड़े मार्केट्स में इन लोगों को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल सीएनजीसी कंपनी शेयर मार्केट में ऊपर है, सीएनजीसी मींस गैस एंड ऑयलिंग कंपनी है। अब ये कंपनी को प्रमोट करना या उसके शेयर से सेल होना, तो ये जो एमसीएक्स कंपनी है ये उनको हैंडल करती है और उसके सेल को। देन the next one is MCX in popular for trading in material energy contract। देन उसने बोला है दिस एक्सचेंज वाज प्रमोट करता है किसे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली जो कमोडिटी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से वो गोल्ड से होगा, कॉपर होगा, कमोडिटी है लेकिन फाइनेंशियल ऊपर है। देन सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसे कौन से है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में कमोडिटी के ऊपर जो सॉफ्टवेयर बने हुए, तो मैक्सिमम कमोडिटी के ऊपर सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे कि मेरे हिसाब से कंप्यूटर पार्ट्स, हार्डवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कंपनी को फॉलो होते हैं, उनके ऊपर होता है। इट्स ऑफर द फ्यूचर ट्रेडिंग इन बिलियन नॉन फ्योर मटेरियल एनर्जी एंड नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। इसके साथ वो किस किस के ऊपर ऑफर करता है, तो नॉन फेवर्स फ्यूअर्स मटेरियल, यानी जो आग लगने वाली चीजें नहीं रहती है, उसके बाद एनर्जी, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, ओके। इसके बाद नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब इसमें ये लोग भी सेम है। अब इन लोगों का कैसा है, डेरिवेटिव मार्केट है, तो अंडर बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा है। अब इसी वजह की हुई क्योंकि यहाँ से
नॉट ओनली कमोडिटी एज वेल एज डेरिवेटिव भी सेल हो रहे हैं. डेरिवेटिव मीन्स वो क्या है, उन नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा. डेरिवेटिव हम टुडे स्टडी कर रहे हैं कमोडिटी. हमारे पूरे किताब का नाम क्या है, पूरे टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, सिलेबस का नाम क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड सॉरी कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट. तो उसमें का फर्स्ट पार्ट कमोडिटी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आज. नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव का देखेंगे. देन आगे देखते हैं. द एक्सचेंज वाज द ओरिजिनली प्रमोटेड बाय आईसीआईसीआई बैंक. एनसीडी कौन प्रमोट करता है? आईसीआईसीआई बैंक. एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाबार्ड तुमने देखी होंगी विलेजेस में एंटर होते वक्त नाबार्ड का बोर्ड लगा हुआ रहता है. और उसके आगे फिर तुम लोग उधर के जो खेती बाड़ी वाले फार्मर एंड ऑल है उनको हेल्प मिलती है एंड लो कॉस्ट बजटिंग लोन एंड ऑल. It is provided by NABARD, National Bank of Agriculture and NABARD is generated by World Bank. हर नेशन में नाबार्ड को जनरेट किया हुआ है फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर पर्पस. आईसीआईसीआई बैंक प्रमोट कर रही है. क्यों प्रमोट कर रही है? बिकॉज यहाँ डेरिवेटिव एक्सचेंज है और जहाँ डेरिवेटिव एक्सचेंज होती है वह आईसीआईसीआई, एलआईसी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनको प्रमोट करते हैं क्योंकि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कंपनी के. वो सेल होगा और डायरेक्ट होता है. ये कब बनी? इन 15 December 2013. NSDE is a popular for trading agriculture commodity is offer future trading in 31 commodities. अब उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, बाद में मैं दे दूंगा. तो दिस एक्सचेंज. अब उसके बाद नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. इसके बाद देखते हैं द नेक्स्ट वन, द नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. This exchange was originally promoted by Trade Kailash Gupta. कौन सा ट्रेडर है? कैलाश गुप्ता एंड सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC in 2000. यानी ये थोड़ी प्राइवेटाइज प्लस इसे मिक्स है. इट इज हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद. ये कहाँ से हैंडल करता है? अहमदाबाद से, गुजरात से. NMCE offer the trading 44 different commodities. अब ये इसमें अलग 44 different commodities. This range for the copra to menthol. Copra to menthol. NMCE is especially popular for the trading spices and planting crops. कौन से? Plantation of crops यानी बीज जो रहते हैं उस कमोडिटी को बेचते हैं. स्पेशली दोज फॉर फ्रॉम केरला. कौन से वाले? जो केरला से लाए जाते हैं. फॉर बनाना क्रॉप्स रहेंगे केरला से, या कोकोनट्स के प्लांट्स रहेंगे एक्सेट्रा. अब फ्यूचर, हाउ टू ट्रेड द कमोडिटी इन फ्यूचर इन इंडिया. वी आर द सेटिंग द national wide multi commodity exchange a new avenue open for the Indian investor. अगर हम क्या करेंगे? फ्यूचर कब बनेगा कमोडिटी एक्सचेंज का? अभी जो अब तक जो हमने स्टडी की है कमोडिटी मार्केट का, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसमें क्या बताया हुआ है कि कुछ लोग हैं वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और वो एजेंट्स तो हमारी कमोडिटी को एक्सचेंज वे में यूज करते हैं. हम डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर होल प्रमाणिक होल के ऊपर करना है, होल लिमिट में करना है, तो इन कमोडिटी मार्केट एजेंट्स के पास जाना पड़ता है ताकि तुम्हारे पास कोई सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे और तुम्हारा प्रोडक्ट सेल. अब ऐसे टाइम में तुम्हें अगर फिर से कुछ करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले while sitting for the national wide बड़े पैमाने पे करना है तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, न्यू वेन्यू की जगह एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बनाना पड़ेगा इंडिया ने. इस एक्सचेंज को हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम देना चाहिए. मेक इट इजी टू ट्रेड फॉर कमोडिटी फ्यूचर और वो इजी होना चाहिए. ट्रेडिंग इन कमोडिटी फ्यूचर कंपनीज ऑफ 3 सिंपल स्टेप. 1 स्टेप चूजिंग अ ब्रोकर. डिपॉजिट मार्जिन कि तुम कितना करेंगे वो फिक्स होना चाहिए कि एक कंपनी इतना ही सेल करे ताकि सबको ट्रेंडिंग मिले और सबका सेल हो, मैक्सिमम सेलर आए बाहर, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो. द डिपॉजिटरी ऑफ मार्जिन क्यों होना चाहिए? अब एक एग्जाम किया गया कि एक कंपनी 1 ईयर में 5 करोड़ कमोडिटी बेच सकती है. तो ठीक है कि अदर कंपनी को और 5 करोड़ बनाने मिल सकता है,
अब एक ही कंपनी को टेंडर किए, वो अच्छा दे रहा है बुरा दे रहा है नो आइडिया, लेकिन रिलेशन अच्छा है इसलिए हर साल उसे ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं। और वो फिर कमोडिटी चीपेस्ट क्वालिटी बनाई जा रहा है बिकॉज द मेकिंग ऑफ नेम, उसका नाम बन चुका है। फॉर एग्जांपल गोदरेज हो, चलो अच्छा बना रहा है, नाम बन गया, देन ट्रेडिंग इट्स गुड नॉट। तो ऐसी जगह पे क्या होना चाहिए, एक मार्जिन डिसाइड होना चाहिए कि गोदरेज इतना बेचेगा, लिनोवा इतना बेचेगा, आईसीआईसीआई बैंक इतने शेयर बेचेगी, सबका लिमिट जनरेट करना चाहिए। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिंग प्लानिंग, हमें प्लानिंग जो है इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिंग की, वो जल्दी से जल्दी एक्सेस करनी चाहिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि गल्फ कंट्री में या किसी और कंट्री में किस चीज़ का ज़्यादा ट्रेड है, तो उस ट्रेड के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ग्रीन ग्रीन फार्मिंग किस में ज़्यादा होनी चाहिए, ऑयल कितना निकलना चाहिए, नेशन को कितना लगने वाला है, एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं, प्रोडक्शन कितना होना, इलेक्ट्रिसिटी कितनी बनानी चाहिए, नेशन कितना यूज होगा, एक्सपोर्ट कितना करना है, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन से क्या होगा, बल परचेज से क्या होगा, बल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, ये इन 3 स्टेप्स के बारे में सोचना है। देन मोस्ट एक्टिविटी कमोडिटी फॉर एमसीएक्स, एमसीएक्स को वॉल्यूम में अगर देखेंगे तो 16 अक्टूबर 2019 का रिकॉर्ड है कि उन्होंने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस को मैक्सिमम सेल किया है, उसके बाद लीस्ट हुआ है, सिल्वर उनसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, फिर निक उन्होंने सेल किया है, गोल्ड सेल किया है, उसके बाद सेल किया है, जिंक सेल किया है, कॉपर सेल किया है। अब इनकी लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस चीज का सेल हुआ है, क्रूड ऑयल। रीजन, द रीजन इज मैक्सिमम व्हीकल इन इंडिया, मैक्सिमम टू व्हीलर और फोर व्हीलर आजकल इंडिया प्रमोट हो रहा है, खुद को प्रमोट कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो डेवलपमेंट में हर घर में एक गाड़ी है, और गाड़ी बिना फ्यूल की चलती नहीं है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस या सीएनजी सीएन एंड ऑल, हर घर में चूल्हे हैं, तो मैक्सिमम नेचुरल गैस सेल हो रहा है। सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड मैक्सिमम हो गया है आजकल का कहने पर ना शो। उसके बाद जिंक है एंड कॉपर है। कॉपर इज रीजन कि सिल्वर और निक जिंक ये चार चीजें अगर सेल हो रही है तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए कॉपर बेस होता है, तो मैक्सिमम कॉपर एंड इलेक्ट्रॉनिक उनके वायर बनाने। बेनिफिट ऑफ कमोडिटी मार्केट क्या है, बेनिफिट द फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन, देन सेकंड इज इन्फ्लेशन प्रोमोटिंग प्रमोशंस, उसके बाद क्या है, हाई रिटर्न्स ऑन योर कमोडिटी सेल एंड ऑल। अगर तुम डायरेक्ट सेल करेंगे तो बल्क परचेस, बल्क सेल नहीं होगा। अगर ये लोग बीच में, तो इनको पता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा खरीदेंगी कमोडिटी एक्सचेंज वाले, तो तुम्हारा वो एक बारी बल्क में खरीदते हैं और मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं, लिक्विडिटी पैसा जनरेट हो रहा है, ट्रेडिंग ऑन लोअर मैनेज, लोअर मार्जिन, ट्रेडिंग जो है वो क्या है, लोअर मार्जिन में हो जाती है, ज़्यादा खींचातानी नहीं करना पड़ता है, और उस मार्जिन पे ट्रेडिंग होने के बाद मैक्सिमम सेल होता है, एक बेनिफिट है। हुँ? इसके बाद तुम्हें कुछ सेफ्टीज है, स्टे अवे फ्रॉम इफ प्रोवाइडिंग द एडवाइजरी एडवाइजरी फर्म्स, तुम्हें खुद से ऐसे फर्म्स जो तुम्हें एडवाइस करते रहते हैं हमारे अंडर आ जाओ, हम संभालेंगे, देन 5-6 साल बाद बंद हो जाते हैं कमोडिटी मार्केट में, उनसे दूर रहना है। ऐसे बहुत से फर्म्स है। डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप, स्टॉप लॉस, नेवर ओवर ट्रेड, डोंट एमिनो ड्राइव यू, स्टॉप डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग मीन्स वो जो भर के दिया जाता है। देन इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन क्या है कि हमने आज कमोडिटी मार्केट के बारे में सीखे, और कमोडिटी मार्केट मीन द डिफरेंट ऑफ कमोडिटी, लेकिन हम कमोडिटी के बारे में नहीं सीखे। आलू कैसा है, प्याज कैसा है, वो चीज कैसी, ये नहीं सीखे। हमने क्या सीखा है कि वो जो मार्केट्स है, जो प्लान्स किया जाता है, जैसे तुम न्यूज देखेंगे तो न्यूज में बोला जाता है की बाजार भाव पडलं, त्यामुळे तेलाची घसरण झाली वगैरह, तो क्यों, कौन सा बाजार भाव, तो कमोडिटी मार्केट, ये मैंने प्लान्स के लिए, तो इसमें वो सिखाया जाता है। तो ऑयल बेच, तुम अगर ऑयल की कंपनी है तो वो मैक्स इतना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो कहाँ बेचे, तो सीएनजीसी वाला तुम्हें तुम्हारे अंडर डील करेगा, वो तुमसे बल में लेगा, खुद के नाम के नीचे बेचेगा। लाइक ऐसे बहुत सी कंपनी है। उसके बाद अगर कॉटन है तो कॉटन में टू टाइप्स है, कॉटन में टू टाइप्स है, ब्लैक कॉटन, व्हाइट कॉटन। तो कौन सा कॉटन ज्यादा बिकता है, ब्लैक कॉटन ऐसे ही लोकल मार्केट में बिक जाता है, वही व्हाइट कॉटन बेस्ट क्वालिटी का है।
तो कॉटन अपने यहाँ से इंग्लैंड में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो कहाँ जमा करना है, तो गुजरात के पोर्ट पे जमा करो, वहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंजर है, वो तुम्हारा पूरा कॉटन ले लेगा, देन उसके सप्लायर जो गुजरात से आउट ऑफ द कंट्री रहेंगे वो लेके जाएगा, ये है। तो फॉर एग्जाम्पल द कमोडिटी मार्केट वेयर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन because the precious material, base material, crude oil, energy and soft commodity like palm oil, coffee, etc. being trade. हर चीज ट्रेड होती है. The growth commodity market was remarkable during the last disease price. All the commodity heading the northward due to the rapid increasing in demand. किसकी वजह से हो रहा है? Rapid increasing demand for the commodity. It is important to develop vibrant activity and liquid commodity market. This world help investment hiding the commodity risk, value of contract, trading commodity, market representation, the demand for trading and people awareness. Regarding the market, the investor relationship of commodity market with stock market show the alternative ahead the investor where they feel bearish trend in sell. Okay, thank you. तो अभी के जो लेक्चर में तुमने सुने कमोडिटी मार्केट, इसके रिलेटेड मैक्सिमम अभी जो है उसका रिकॉर्ड एंड ऑल डिटेल्स लेने के लिए फ्राइडे एंड सैटरडे तुम्हें 2 डेज दिए हुए हैं। मुल्ला जी सर ने बताया कि नहीं मुझे पता नहीं, उन 2 डेज में तुम्हें कॉलेज में आना है मैक्सिमम ट्राई करके, और कुछ दिन टेक्स्ट बुक वगैरह जो कुछ भी हमारे पास है या इन फॉर्म ऑफ पीपीटी जो है वो तुम्हें हमसे लेके जाना है, विथ पेन ड्राइव आना है, वीडियोस भी लेके जाना है, मे बी यूट्यूब से डाउनलोड होने में या वॉइस प्रॉब्लम है तो वो वाली वीडियो में क्या है क्या नहीं है मैं बताऊंगा यहाँ पे। मैक्सिमम मेरे लेक्चर्स के लिए फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स और कमोडिटी वैल्यू टीवाई वाले तुम्हें ज़्यादा आना है, मुझे मेरे लेक्चर में लैपिंग नहीं चाहिए। ओके, मुल्ला जी सर भी बुलाएंगे मेरे हिसाब से 2 दिन दिए हुए, तो उन 2 दिन आना ही है। ओके, अगर कोई विजिट नहीं करता है और बाद में अगर बोले कि कमोडिटी मार्केट में हमें प्रॉब्लम है या डायरेक्ट टैक्स में, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, तुम अगर यहाँ पर्सनली आएंगे तो मुझे अच्छे से बताने मिलेगा, सिलेबस वाइज बताने मिलेगा, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं लाइब्रेरी से ताकि तुम मैक्सिमम सिलेबस के आगे बढ़ो। ओके।